watch this topic in Hindi, skip to the timestamp of 3 minutes 22 seconds. Welcome to Legal Update program. The topic of discussion is free legal aid for prison inmates. First of all, let's see why is it in the news. Recently in the case Suhas Chakma versus Union of India and others, the Supreme Court issued guidelines on free legal aid for prison inmates. Background of the case. A writ petition was filed under Article 32 of the Constitution seeking protection of prisoners' rights against inhumane conditions in overcrowded prisons. Following pleas were included in the petition: ensure prisoners are not subjected to torture or degrading treatment due to overcrowding, recognize the inherent dignity of each prisoner, and establish a permanent mechanism for decongesting prisons. Supreme Court addressed two primary issues including free legal aid for inmates and access for lawyers to visit prison inmates. Court observation: a bench of B.R. Gavai and K.V. Vishwanathan was assisted by amicus and senior advocate Vijay Hansaria on the issue of free legal aid. The court issued guidelines regarding free legal aid to prison inmates. Free legal aid. Article 39A, part of the Directive Principles of State Policy, mandates the state to provide free legal aid through legislation or schemes to ensure that justice is not denied due to economic or other disabilities. Section 341 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 provides for legal aid to accused at the state expense in certain cases. The Legal Services Authorities Act 1987 establishes various authorities like NALSA, SLSAs, and DLSAs to provide free and competent legal services to weaker sections of society and to create awareness about legal rights. Case law. Husainara Khatun versus Home Secretary, State of Bihar 1980, established that a fair and just legal process includes providing legal services to those who cannot afford them. Madhav Hayavadan Rao, Hoskote versus State of Maharashtra 1978, declared the right to counsel for prisoners a fundamental right linked to Article 21 and underscored the state's duty to provide legal aid. Now moving on to practice question. Which article of the Constitution mandates free legal aid? Article 21, Article 39A, Article 14 or Article 32? Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है जेल के कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जेल के कैदियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता पर दिशा निर्देश जारी किए। मामले की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई। याचिका में निम्नलिखित दलीलें शामिल की गई। यह सुनिश्चित किया जाए कि कैदियों को भीड़ भाड़ के कारण यातना या अपमानजनक व्यवहार का सामना न करना पड़े। प्रत्येक कैदी की अंतर्निहित गरिमा को पहचाना जाए और जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्राथमिक मुद्दों पर विचार किया, जिनमें कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और वकीलों को जेल में कैदियों से मिलने की सुविधा शामिल है। न्यायालय की टिप्पणी। B.R. गवई और K.V. विश्वनाथन की पीठ को निःशुल्क कानूनी सहायता के मुद्दे पर न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सहायता प्रदान की। न्यायालय ने जेल के कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। अब जान लेते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP का हिस्सा अनुच्छेद 39A राज्य को कानून या योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय से इनकार न किया जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नालसा, SLSAs और DLSAs जैसे
विभिन्न प्राधिकरणों की स्थापना करता है। संबंधित केस हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1980। इसने स्थापित किया कि निष्पक्ष और न्याय संगत कानूनी प्रक्रिया में उन लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना शामिल है जो उन्हें वहन नहीं कर सकते। और माधव हयावदन राव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978। कैदियों के लिए वकील के अधिकार पर अनुच्छेद 21 से जुड़ा एक मौलिक अधिकार घोषित किया और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कर्तव्य को रेखांकित किया। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 32? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।